All right. So there are some cases which you need to know. स्कूल में भी होता है और वैसे भी पता होने चाहिए. How to find the time period of pendulum, how to find the time period of spring mass system, etc. So let's start with the first one, which is the simple pendulum. Simple pendulum. तो यहाँ पे pendulum is fixed, and this is your pendulum, and you disturb it a bit. It is taken to a height. You draw free body diagram here, or you can use energy approach also. So let's say you raise its height by a certain amount. Depend करता है, जैसे कई लोग यहाँ टेंशन और वेट के दो कंपोनेंट ले लेते हैं. वेट के ये थीटा होता है, सो ये एम जी साइन थीटा और ये एम जी कॉस थीटा. तो restoring force is mg sin theta, but it depends on how you want to take it. So let's say this height gain by the pendulum is y, and the horizontal distance it has moved is x. So the gain in potential energy is mgy, and if you want to calculate y only, the height gain, this is L. Okay, and this angle is theta. L तो अभी भी string तो उतना ही लंबा रहता है. This string is still L. Its component here becomes L cos theta. So this यहाँ से लेके यहाँ तक component is L cos theta. So total height gain will be y is equal to L minus L cos theta is equal to L 1 minus cos theta. This is your y, the gain in height of the pendulum. So the and 1 minus cos theta can be written as 2 sine square theta by 2. This is your y. अगर सिर्फ y की टर्म्स में लिख रहे हो, u की टर्म्स में this will become mgy, मतलब 2 sine square theta by 2 into L. And since the movement is always very small, theta is very small. Theta is very small, and therefore sine theta by 2 is approximately equal to theta. Angle जो है, right? So this becomes mg2 theta square by 4 into L. Okay, so this becomes mgl theta square by 2. This is your potential energy change because of slight angular motion of theta. Now theta is the angle and the arc is this. So this is your situation at the height gain. So this is theta, this is the horizontal movement, this is L. The theta is equal to x by L. Okay. For very small values of x, x is very small. Arc, this is arc is equal to r theta. R is this radius. So this is mgl by 2 and x square by L square. This is u. Or u is equal to mg by 2L x square. This is the potential energy expression, right? If you compare this with the SHM, SHM में F is equal to du by dx, right? If you do du by dx is equal to mg by 2L into 2x is equal to 0. So x is equal to 0, right? So जो SHM के अंदर में k ढूंढना होता है, f is equal to minus kx की अगर मैं बात करूं, right? ये एनर्जी का एक्सप्रेशन है,
ये मेरा एक्सप्रेशन आ रहा है mg(x/L du/dx. दिस इज माय फोर्स, राइट? द फोर्स इज इक्वल टू kx, तो k मेरा आ गया mg/L एट x इक्वल टू 0, राइट? तो मेरा ये फोर्स इज इक्वल टू, सॉरी, k इफेक्टिव, जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, जो इज इक्वल टू mg/L. तो हमारा एम भी यही होता है इन क्वेश्चंस के अंदर, किसी भी तरह से हम ये प्रूव कर दें कि F इज इक्वल टू के एक्स. इफ यू कैन प्रूव दिस, दैट इज वेयर द होल अप्रोच इज. के इफेक्टिव अगर हमें निकालना है, तो के एक्स की टर्म्स में लेके आना है फोर्स को. तो हम इसमें क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हैं? हम पोटेंशियल एनर्जी का पहले एक्सप्रेशन निकालते हैं, ये वाला पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालते हैं. और जो फोर्स होती है, दैट इज इक्वल टू du/dx. Why? Because at the equilibrium position where x is equal to 0, the body is in equilibrium. At x equal to 0, the simple harmonic motion is in equilibrium. There is no net force at the mean position. So force is 0, right? And force is actually minus du/dr. मतलब ये जो एक्सप्रेशन है, इसको बोलते हैं हम, ये इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन होता है, इसको मैं अलग से लिख देता हूँ. F इज इक्वल टू माइनस du/dx बोलते हैं इसको. ओके, और हम इसको लिखते कैसे हैं? द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज इक्वल टू द नेगेटिव मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट. ऐसे लिखा जाता है. ग्रेडियंट का मतलब होता है किसी भी चीज का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, राइट? सो फोर्स Okay. जो एक्ट करती है, इट एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ maximum decrease in potential energy. So force can also be written like this. ऐसे भी लिख सकते हैं फोर्स को हमेशा, minus du/dr. So if you're given an expression of potential energy and you calculate du/dx with the help of that expression of potential energy at 0, अगर आप इसे सॉल्व कर लें इक्वेशन को, जो आपका x आएगा सॉल्व करने पे, मान लो मैं आपको u इज इक्वल टू -2x² + 4x दे देता हूँ, तो आप बोलते हो जी du/dx इज -4x + 4. इसको अगर 0 डालोगे तो x इज इक्वल टू 1. दिस x इज इक्वल टू 1 corresponds to du/dx equal to 0, which means the force, and this expression is the force acting on the body. So at n, this force has come out to be 0 at x equal to 0. So the force acting on the particle is equal to the negative of maximum potential energy gradient. ये जब u जब मिनिमम होगा, u इज मिनिमम व्हेन u इज मिनिमम, जब बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर होता है, राइट? और Okay. पार्टिकल्स क्या करते हैं? दे ऑलवेज oscillate about an equilibrium position. They oscillate about an equilibrium position, and when they reach the equilibrium position, u becomes minimum, where the uh, force is equal to 0. तो अगर आपको कभी भी, you have to find the if your aim is to find k, okay, ultimately you have to find k.
ये सब लिखा आपने, यू पहले यू पोटेंशियल एनर्जी अप्रोच स्ट्रेटेजी लगा रहे हैं आप। तो आप यू इस्टेब्लिश कर रहे हैं, एक यू का फंक्शन बनाना है आपको। ओके, मेक अ यू फंक्शन इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन। बना लो, जैसे इसके अंदर हाइट का था, बना लिया। फाइनली उसका जब यू पे पहुंचे तो उसका हमने डेरिवेटिव लिया, और डेरिवेटिव लेने से हमें पता चला कि, और डेरिवेटिव में इक्वल टू जीरो डाला। ये मतलब ये जो फोर्स थी स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए, ये जीरो डाली, और तो x इक्वल टू जीरो आ गया। तो पता चल गया कि इस मोशन में x इक्वल टू जीरो मतलब नो हॉरिजॉन्टल, मतलब वहीं पे यहीं पे अगर पड़ा रहे तो इट इज एट द स्टेबल पोजीशन। ओके, तो x इक्वल टू जीरो आ गया, तो ये कंफर्मेटरी टेस्ट है कि x इक्वल टू जीरो पे स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ओके, और फिर जब डेरिवेटिव लिया तो कंपेयर करा f और k x को। तो k इफेक्टिव जो है वो यहां से पता चल गया कि के इफेक्टिव इज एम जी बाई एल। तो के इफेक्टिव मालूम चल गया, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर जो एक्सप्रेशन है एफ इज इक्वल टू के एक्स, वो पता चल गया। तो टाइम पीरियड निकालना इज नो बिग डील नाउ इफ यू फाइंड दिस। ठीक है। तो ऐसे होता है ना, ये के का क्या फॉर्म होता है? ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम? के बाय एम। क्या ओमेगा हाँ के बाय एम। के बाय एम, तो के हमने निकाल लिया, एम जी बाय एल, और एम ये कट गया, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाय एल आ गया। तो 2 पाई बाय टी स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाय एल। टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाय जी। सो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। टी इज इक्वल टू 2 पाई, कई बार पेपर में आ जाता है, डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आप इसेंशली योर एम, अल्टीरियर मतलब एम जो है, इट इज टू फाइंड द इफेक्टिव फोर्स कांस्टेंट। अगर आपने फोर्स कांस्टेंट निकाल लिया तो फिर ये ढूंढ यूज कर लो, और ओमेगा निकाल लो या टाइम पीरियड निकाल लो। Okay, so let's say you are given a situation, okay, and the situation is that the particle is um, having a potential energy ux. इट इज नॉट सिंपल हार्मोनिक, मतलब पेंडुलम नहीं है ये, कोई और है इसका u, and the u is governed by formula u naught 1 minus cos of ax. Okay, and u naught is a constant and a is a constant. मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया, okay, you have to find the period of oscillation using u and this expression। जैसे वहां पे अभी ऊपर ऊपर हमने निकाला था, the u was this mgl, तो ये था हमारा। इससे हमने du बाय dx लिया, और x इक्वल टू जीरो पे पता चल गया हमें कि फोर्स जीरो आएगी, बिकॉज फोर्स वाज डेरिवेटिव ऑफ u। अब आपको इस एक्सप्रेशन की जगह, जो हमने SHM के लिए खुद ही निकाल लिया था ये हाइट वगैरह से, यू हैव टू यूज दिस एक्सप्रेशन, एंड योर एम इज टू फाइंड what is the period of the oscillation of this body which is governed by this potential energy variation with x when it is disturbed from its equilibrium position for small oscillations। सबसे पहले एम क्या होता है हमारा? f निकालना इज इक्वल टू माइनस डी यू बाय डी एक्स इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा? इसका तो वन जीरो हो जाएगा। यू नॉट, कॉस का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, प्लस हो जाएगा साइन ए एक्स इंटू ए इज इक्वल टू यू नॉट ए साइन ऑफ ए एक्स। सो यू टुक द डेरिवेटिव एंड this is your, so let's say uh,
let's put it equal to 0 for force to be 0. देखते हैं कहाँ पे आता है. तो साइन ए एक्स इज इक्वल टू 0. तो ए एक्स इज इक्वल टू कहाँ डालें? पाई डाल दें. एक्स इक्वल टू 0 है एक रूट इसका और दूसरा पाई है. सो एक्स इज इक्वल टू पाई बाय ए and x is equal to 0. Okay, now let's take a double derivative. So d square u by dx square is equal to u naught a square cos of ax. Okay, इसका माइनस साइन है. अब यहाँ पे x इक्वल टू 0 डालते हैं. तो दिस विल बिकम माइनस यू नॉट ए स्क्वायर इंटू 1. और अगर x इज इक्वल टू पाई बाय ए डालते हैं, सो दिस विल बिकम डी स्क्वायर, मतलब एक मैक्सिमम मिनिमम वाली को कर रहा हूँ मैं डबल डेरिवेटिव, माइनस यू नॉट ए स्क्वायर कॉस ए एक्स इज इक्वल टू पाई, -1 हो जाएगा, प्लस यू नॉट ए स्क्वायर कॉस पाई. सो एट एक्स इज इक्वल टू 0 it is negative. So this represents what? Maxima. हाँ. So this, and we have written that the potential energy is lowest माइनस मोस्ट होती है. स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी इज लोएस्ट. सो ये रूट तो गलत है क्योंकि x इक्वल टू पाई पे पोटेंशियल एनर्जी काफी ज्यादा हो गई है. तो स्टेबल इक्विलिब्रियम तो बिल्कुल भी नहीं है ये. अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए पोटेंशियल एनर्जी हैज टू बी मैक्सिमम नेगेटिव. ठीक है, तो ये वाला हमारा x इक्वल टू 0 वाला हमें ज्यादा जचता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा यहाँ पे. सो एट x इज इक्वल टू 0 we will have a stable equilibrium because we are getting u to be maximum on the negative side, lowest potential energy. माइनस साइन से रिप्रेजेंट करिए. अगर आपकी ये रेफरेंस लाइन है तो आप अगर नीचे चले गए इसके तो आप ज्यादा स्टेबल, ऊपर जाओगे तो प्लस हाइट की वजह से आपकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई. सो एक रेफरेंस लाइन है मान लो, तो आप नीचे की साइड हो तो ज्यादा स्टेबल हो आप. तो एक्स इक्वल टू 0 हमें ज्यादा सूट करता है. और अब क्या है, हमें एफ का एक्सप्रेशन मालूम चल गया है. what is f? Okay, and now what we do is, let's say that the particle is given a very small displacement from the mean position of delta x. Let's see what is the small. So f is equal to u naught sine ax. We have to calculate small change in force with a small change in x. So df by dx. Okay. देखते हैं कितना चेंज होता है इससे. u naught a sine of ax, right? So this is what ये सही लिया हमने, एक मिनट. df ये हमने निकाला था, f तो u से निकाल लिया था, और वी हैव मूव्ड इट बाय अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी. डेल्टा f हमारा x इक्वल टू 0 था, उससे हमने थोड़ी सी वेरिएशन करी. वेट, तो थोड़ी सी फोर्स लगाने पे f इज इक्वल टू साइन, सॉरी, u नॉट a साइन ax. So f प्लस डेल्टा f इज इक्वल टू u नॉट साइन a x plus delta x. So delta f is equal to u naught sine of ax plus a delta x minus u naught a sine ax. Restoring force. u naught कॉमन है, साइन ऑफ a माइनस साइन ऑफ b. तो ये क्या होता है, 2 साइन a माइनस b बाय 2. तो ये कितना बन जाएगा, a डेल्टा x बाय 2 and cos of a plus b. So ax plus a delta x by 2. Now delta x is very small. So delta x is approximately very, very small.
So this part, the A delta x by 2, sine of theta becomes theta. So this will become u naught into 2 into A delta x by 2. And this is very small in the cos. So this will become delta f is equal to cos of A x. ये सही निकल रहा है हमारा? u नॉट इंटू 2, ठीक है, 2 कट गया, cos ax आ गया एक, cos ax. You have a very small displacement, delta f. अच्छा हाँ, इस टाइम पे x is 0, right? Yes. So this will also become uh, 1. Cos ax will become 1 because x is 0. So आपका जो डेल्टा f का नेट एक्सप्रेशन आ रहा है, that is coming out to be u naught a डेल्टा x. ये आ रहा है आपका एक्सप्रेशन यार, इसमें कोई गलती है? f में एक a ऑलरेडी था और एक a और आ गया, तो ये वाला a और ये वाला a मिलके a स्क्वायर बन गए. सो a स्क्वायर u नॉट डेल्टा x. दिस इज योर रीस्टोरिंग फोर्स. सो हमने प्रूव कर दिया कि if you move this body by a small amount of delta x, it will have a restoring force of delta f, right? तो इसका अगर मैं कंपेयर करूं वो f इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स से, सो मैं ओमेगा स्क्वायर एक्स या एम ए इज इक्वल टू फोर्स से कंपेयर करूं मैं के एक्स से, सॉरी के एक्स. तो मेरा जो के है, क्योंकि मेरा एम तो एक्सेलरेशन इज के एक्स अपॉन एम, तो मेरा के तो हो गया के, ये एम ए है, डेल्टा एफ इज इक्वल टू एम ए के एक्स इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर यू नॉट डेल्टा एक्स अपॉन एम. एक्सेलरेशन आ गई मेरी, तो एक्सेलरेशन जो होती है दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर डेल्टा एक्स. की बात को गोल गोल घुमा रहे हैं, ये ओमेगा निकालना था, निकाल लिया बस. सो ओमेगा स्क्वायर comes out to be a square u naught by m. So omega is equal to uh, a under root of u naught by m. So 2 pi by t is equal to a under root of u naught by m. So time period is equal to 2 pi under root m by u naught into a. This is your time period. Answer. सही लिखा है? ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक ही लिखा होगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी, टी इज इक्वल टू, ठीक है, सॉरी ए नीचे आ गया, ये नीचे आ जाएगा ना इधर, ये आ गया टाइम पीरियड. सो इफ यू आर गिवन इक्वेशन ऑफ u that can give you a valuable insight to find k effective. u की मदद से k effective निकालना, स्टेबल इक्विलिब्रियम, फिर उसके बाद ये वाला स्टेप लेना डेल्टा एफ और k निकाल लेना. That will give you the time period. Okay, let me give you one question you can try. So say the potential energy is given to be equal to u naught minus ax plus bx square. Okay, you have to find the expression of force as a function of position.
1. Second, at what x force vanishes, which means it's a case of equilibrium. But question is, वो जो x अगर 2 3 आ गए या 2 आ गए, तो जो भी x आया, is it a situation of, is it a stable equilibrium position or not? So this is your start point. You know the steps now, you have some sense. You say, I have to do minus du by dx. And ये भी x में ही है. ये ax है, sorry. Okay, this is ax. If you can use the above and copy the steps on your own. du by dx is force. Minus du by dx is force. ठीक है. Minus du by dx. अभी तक तो हमने पोटेंशियल एनर्जी जो थी हाफ के एक्स स्क्वायर ली थी ना, पैराबोलिक. सर माइनस a plus 2bx. You know how to take derivative now. हाँ ठीक है. और सेकंड पार्ट है at what n the force vanishes. At what x it? X. ये क्या लिखा है? एक मिनट, ये तो सेकंड फोर्स पार्ट कर रहा हूँ. Okay, no problem. Is it a stable equilibrium? प्रूव करना है आपको, मतलब डबल डेरिवेटिव की मदद से ऑब्वियसली.
थर्ड एफ बाई पार्ट। एक्स का भी डेरिवेटिव ले लेंगे ना। अब ये वाला एक डेरिवेटिव और ले लोगे। तो ये नहीं स्टेबल, एक पॉजिटिव में आ जाएगी वैल्यू। हाँ, करके देख लो। ये कौन बनेगा करोड़पति नहीं है, करना पड़ता है। यू हैव टू ओके, फाइंड दिस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ यू। एक मिनट, डी स्क्वायर बाई डी एक्स। व्हाई आर यू राइटिंग स्क्वायर हियर? फर्स्ट डेरिवेटिव इज दिस, व्हाई आर यू डूइंग वन मोर? हाँ तो लिख लो ना यार, मतलब आ जाएगी इज फाइन। क्या था पंगा? टू बी। ये वो मलबा नहीं जाता यार, प्रेशर नहीं है। कौन सी फ्लश? नहीं 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 होगा, या तो बाल्टी से जाता है। ऊपर लग सकती है फ्लश ऊपर। नहीं नहीं, करिए ना। हाँ, श्योर। पॉजिटिव आ गया ना। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं है। एक्स कितना आया था? सो डबल डेरिवेटिव इज पॉजिटिव। हम्म, डी स्क्वायर एक्स, सॉरी, डी स्क्वायर यू बाय डी एक्स स्क्वायर हैज कम आउट टू बी जीरो, sorry, greater than zero. It's a positive. So 2b is greater than zero. Yes. क्यों? मिनिमम हुआ ना, मतलब मैक्सिमम मिनिमा का क्या रूल होता है? डबल डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन जीरो है तो क्या होता है? मिनिमा। हाँ फिर तो मिनिमम हुई ना पोटेंशियल एनर्जी फिर। हम्म। तो यस। एट x इक्वल टू जीरो, a by 2 करस्पॉन्ड्स टू मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी। हाँ ठीक है।
These are typical JEE questions. जो आपने दिया था अभी। Find frequency ना, find frequency also. Stable equilibrium, find frequency. K तो निकाल लिया ना? Where is your K? K कहाँ पे है? इज जो डबल डेरिवेटिव आता है, ये वाला, हाँ ये डबल डेरिवेटिव जो आया है, दैट्स योर K. To be. So omega square, sorry, K will be equal to m omega square. इसको डाल दो ना एक बार. Find omega. ओमेगा Bring m here, take under root, √2b by m answer. rad percent. बहुत यूनिक था ना, मतलब कॉन्सेप्ट थोड़ा सा. I'm just telling you a shortcut. Double derivative is a K directly. जी. Harmonic. Okay, next page. Okay, now let's do a case 2 of a spring mass system oscillating in a vertical plane. So that's your mass and that's your spring. Spring is pulled by a small quantity. जब आप स्प्रिंग को छोड़ते हो, मतलब जैसे स्प्रिंग यहाँ था, when you connect a mass to it, it gets increased by an amount x naught. ठीक है, मास लगाने से. पर इसके बाद आप डिस्टर्ब करोगे इसको. सो इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट यू डूइंग इज, तो यहाँ पे आप इसको डिस्टर्ब करके, सो यू आर डिस्टर्बिंग इट, दैट्स योर डिस्टर्बेंस. ठीक है, डिस्टर्बेंस मतलब खींच रहे हैं ना. थोड़ा सा जो डिस्टर्ब करते हैं, इसकी SHM शुरू थोड़ा करने के फैंसी लिए. वर्ड है डिस्टर्बेंस पर ठीक. हाँ. ये क्या ये है. हुक्स लॉ वाला है क्या ये? हाँ, मतलब नॉट अ हुक्स लॉ के अंदर तो आई थिंक द ओनली रिस्टोरेशन फोर्स इज देयर. हम के इफेक्टिव निकाल रहे हैं इसके अंदर. अच्छा. हाँ, बट हुक्स लॉ से जो राइट हैंड साइड है भाई, मेरी जो इसमें एम डी स्क्वायर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर, मतलब एक्सेलरेशन, वो एक स्प्रिंग के लिए माइनस के एक्स होती है ना, हुक्स लॉ से. राइट. तो इसमें मेरा जो के आ गया, के इफेक्टिव जो मुझे निकालना होता है, वो मुझे डायरेक्टली मालूम चल जाता है इसके अंदर. कि इसकी इक्वेशन क्या बन गई नेट, कि एम डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0. सो ओमेगा, सो डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू के बाय एम एक्स इज इक्वल टू 0. सो ये वाला जो पार्ट है, अगर आप देखें ध्यान से, के बाय एम, व्हाट इज दिस, ओमेगा स्क्वायर. So this is omega square is equal to k by m.
Therefore, omega is equal to under root of k by m. Therefore, 2 pi by t is equal to k by m. And therefore, the time period is 2 pi under root m by k. So, if you know the spring constant, ये जो k है ये spring constant है ना directly k जो वहाँ k effective था. So now you can find the. तो ये तो हो गया एक मैकेनिक्स की अप्रोच जिसमें m इंटू ए इज इक्वल टू के एक्स से कर लिया हमने. इसमें हमने एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की अप्रोच नहीं लगाई ना. डबल डेरिवेटिव नहीं करा ना. कुछ नहीं करा. बस ऐसे ही लिख दिया सीधा आंसर धड़ाक. So do you see that for a spring mass system, the only dependence of time period is k of the spring and mass of the spring, nothing else. Characteristics are spring and the mass. कुछ नहीं फर्क पड़ता कि और क्या है सिस्टम के अंदर. तो मतलब if I give you a situation that I say okay I will slightly complicate it for you and I will put this as a system. So this is my spring, sorry mass, and this is my spring and so I ये अभी इक्विलिब्रियम में है इसको मैं छेड़ता हूँ. इसमें भी क्या होगा द टाइम पीरियड विल बी ओनली 2 पाई बाय m by k. कोई चेंज नहीं होने वाला. इवन इफ यू कीप इट एट एन इंक्लाइंड ऑफ एन एंगल थीटा मेक्स नो डिफरेंस. इट ओनली डिपेंड्स ऑन मास एंड द स्प्रिंग कांस्टेंट. कैसे ही रख दो अब इस मतलब स्ट्रेटेजी अब कई लगा लो. कई लोग इसको क्या करते हैं कि कंफ्यूज करने के लिए आपको पुली दे देते हैं और पुली के अंदर वो यू स्प्रिंग इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड एंड द मास इज कनेक्टेड हेयर. सो दिस गिव्स अ वेरी डिफरेंट अपीयरेंस. भाई ये क्या हो गया ये तो पुल्ली से हो गया बड़े. इसमें भी योर आंसर इज 2 पाई m by k. Makes no difference to your scenario. Although these look very different from this spring hanging vertical plane, but if the plane is slightly inclined or the arrangement is with the help of a pulley system also, this is mass. You pull it, finally the k ही अपनी restoring force देगा. The time period still comes out to be same. Makes no difference. Okay. Now very importantly जो स्कूल में आता है ये हो गया आपका series and parallel combination of springs. Okay, if you have a series spring, use the parallel rule of 1 by k1 plus 1 by k2. Okay, this is your equivalent. निकल जाएगा. If you have springs in parallel, अगर आपके पैरेलल में लगे हुए हैं स्प्रिंग, सो एक स्प्रिंग आपका ऐसे लगा हुआ है और दूसरा स्प्रिंग ऐसे लगा हुआ है. इसका k1 है, इसका k2 है, ये m है, ग्राउंड के ऊपर है, हॉरिजॉन्टली पड़े हुए हैं बेसिकली. तो इसका जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी k इज इक्वल टू k1 प्लस k2. तो पैरेलल के अंदर वन इज दिस वे ऑफ कीपिंग पैरेलल. Okay, the other way of keeping parallel is you keep the spring in the center and you have both the springs, sorry, mass in the center and the springs on the two sides. ये आपका मास है. तो K1 और K2 दोनों तरफ भी अगर आप कर लो तो भी आंसर आपका यही आता है. तो पैरेलल के दो दो तरीके होते हैं दिखाने के कि ये दोनों एक ही साइड पे या मास को बीच में करके ऐसे दिखा लो. मर्जी आपकी. आंसर इज दिस. सॉरी. Right, so if you see मतलब ऐसा you know it's parallel. You don't have to think too much about क्या है ये. Okay, so let's say you have a spring and its spring constant is k and its natural length is L. Length is L. You cut it into two parts of 3L by 4 and L by 4. And what you do is then connect them in this manner. Okay. ऐसे लगा दिया आपने और ये आपका
ग्राउंड है. Okay, so this is your 3/4 L and L/4 L. This is your M. Now the question is, what is the time period of this combination? You spring का तो पता ही है, 2 pi M/K. बट क्योंकि अब दो स्प्रिंग है तो आपको K इक्विवेलेंट निकालना है. सिंगल स्प्रिंग जो काटा आपने, उसके पैरामीटर्स ये थे, कटने के बाद वो ये बन गए. तो सवाल ये है कि अब नए कॉम्बिनेशन का जो टाइम पीरियड है वो कितना होगा. जब अकेले होता तो सीधा मैं ही लगा देता, और 2 pi M/K. बट अब मेरा K जो है, 2 K मेरे हैं पैरेलल में, बट मेरे को उनकी लेंथ दी है. मुझे हुक्स लॉ से मालूम चलना चाहिए कि मेरे जो K हैं वो क्या होगा. व्हाट इज गोइंग टू बी इंडिविजुअल K गिवन दैट parts of 3L/4 and L/4? Any guesses? Guess. What is the relationship between K and length? That is the relationship you need to know. If there is a spring of spring constant and a certain length, then what is the relationship between K and L? K is inversely proportional to length. Okay? तो ये 3/4 L है, तो इसका K कम हो जाएगा, और इसका K जो L/4 है वो 4 times हो जाएगा रेशियो में. तो दिस विल बिकम 4/3K and this will become 4K. And these two you can see are connected in parallel. And therefore you will do K1 plus K2, which is 4/3K plus 4K. If you add them, what do you get? 3 4K plus 12K is equal to 16K/3 is equal to K equivalent. So when you write the expression of time period, it is 2 pi under root of M 16K into 3. तो जो फिजिकली जो एक स्प्रिंग होता है वो उसकी स्प्रिंग कांस्टेंट, जिसका एक नाम दूसरा भी दिया जाता है, जिसको लिखा जाता है स्टिफनेस ऑफ अ स्प्रिंग. स्टिफनेस ऑफ अ स्प्रिंग वो न्यूटन पर मीटर में जो होता है बेसिकली ये, हम तो उसको F इक्वल टू KX लिखते हैं ना, न्यूटन मीटर के. बट इसका अपना फिजिकली डायमेंशन पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. लॉन्गर इट इज, स्मॉलर इज इट्स स्प्रिंग कांस्टेंट. जितना लंबा होता है ये. हाँ जी. ये स्कूल में करवाया होगा स्प्रिंग पैरेलल, और ये देयर आर क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड केसेस आल्सो इन दिस, बट फॉर द टाइमिंग लेट्स फॉरगेट देम. देयर मेनी मेनी कॉम्प्लेक्स सिनेरियोस. बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं, बट लंबा हो जाएगा बहुत ज्यादा चैप्टर फिर. तो हम क्या करते हैं कि जो थोड़ा सा स्कूल लेवल का होता है, स्कूल में एंगुलर SHM करवाया गया? नहीं. अच्छा, करवाया नहीं है. ओके, लीनियर SHM करवाया है सिर्फ. हम्म. अच्छा, ठीक है. So I think from school standpoint of view, you're good to go. Physical pendulum, motion of a ball in a tunnel through the earth, नहीं. gravitation से linked. ये भी ना कई ना. बार आता है कि एक सेंटर ऑफ द अर्थ से एक बॉल फेंकते हैं, वो ऑसिलेट करती है, तो उसका टाइम पीरियड कितना है. और ऑसिलेशन ऑफ अ फ्लोटिंग बॉडी इन अ लिक्विड, ऑसिलेशन ऑफ अ लिक्विड कॉलम इन अ यूट्यूब. सिंपल पेंडुलम करवाया होगा और स्प्रिंग करवाया होगा.
बट हमारे टाइम पे हमें अर्थ का भी करवाया था, सेंटर ऑफ द अर्थ पे जब फेंकते हैं तो क्या था, और यूट्यूब का भी करवाया था कि लिक्विड जो है वो कैसे ऑसिलेट करता है इन द केस ऑफ। खैर वो इतने इसी। हम्म 2023 इवनिंग शिफ्ट जेई मेंस। नेक्स्ट पेज पे, आई एम गोइंग टू नेक्स्ट पेज। Comes equal to its potential energy.
सर हाँ सर आप म्यूट हो। लो, हाँ जी। अभी भेज। फेल टू लोड। नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ मैं। पेज भर गया ये। तो यहाँ भी फेल टू लोड ही आ रहा है। हम्म। फेल टू लोड आ रहा है। फेल टू लोड आ रहा है। ये मैं दोबारा खोल लो व्हाइट बोर्ड। ओके। ये बड़ा है उसका यार। व्यापा बड़ा। अब देखना जरा पेज नंबर 4 में। आ गया आ गया। अच्छा, एक सीरीज में एक पैरेलल में। राइट।
थोड़ी सी कैलकुलेशन है और तो कुछ है नहीं। एक कैलकुलेशन भी नहीं है, ये इजी है। एटीन के स्क्वायर आ रहा है। एक सेकेंड। 18 के स्क्वायर। x, द वैल्यू ऑफ x। हम्म। अच्छा, k इक्वलेंट पहले का कितना k इक्वलेंट आया है? के इक्वलेंट आया है 3/2 पहले के। का 2/3 के, 1/k होता है आंसर। 1/k इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2। उसको उल्टा करना होता है। हाँ तो वही तो है। कहाँ कर रहा है उल्टा? के सीरीज। ये नहीं, अच्छा अच्छा, 1/k ये होता वन है। बाय के होता है। हाँ ठीक है। 2k/3। ये तो इक्वल होता ही नहीं है। पहले यू शुड सॉल्व 3/2 एंड देन राइट के सीरीज इज इक्वल टू सो मच। फर्स्ट सॉल्व इट प्रॉपरली एंड देन इन द नेक्स्ट स्टेप। 1/k is equals to प्लस 1/2 के। टेक एलसीएम। ये आ जाएगा 3 थ्री अपॉन बाई टू टू के एंड देयरफॉर के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू। k/3। और इसमें क्या लिया दूसरे में? टोटल ऐड कर दिया 3 के। पैरेलल में क्या लिया? पैरेलल में तो ऐड करें। पैरेलल में ऐड करा। नाउ अप्लाई इट करेक्टली। सच अ सिंपल क्वेश्चन। x equals to 2।
2 आ रहा वो आ रहा है। I think this appears to be a very good question. Interesting. एसएचएम में चलते चलते एक मास रख दिया और ऊपर पहले पहले 900 ग्राम का था, 124 ग्राम और रख दिया। और उसका इम्पैक्ट किस पे निकालना है? एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन पे। ओके, अगर बहुत ध्यान से सोचें, एनर्जी में तो कोई चेंज नहीं करा, मास बढ़ा दिया, मुझे लगता है उसका जो ओमेगा है वो कम हो जाएगा, ऐसे सोच रहा हूं मैं। और ये एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा अगर ओमेगा सेम रहेगा तो, कि टाइम पीरियड इज डिपेंडेंट ऑन के बाय एम, राइट? स्प्रिंग का मास पे डिपेंडेंट होता है, तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा। ओ, अच्छा, नया एम्पलीट्यूड A2 हो गया, टाइम पीरियड कम हो गया। कुछ हुआ तो है, ऊपर मास बढ़ाने से M/K, स्प्रिंग का K वही रहा, मास बढ़ गया, तो एम्पलीट्यूड पे कैसे इम्पैक्ट आपको असेस करना है? M/K, K remains unchanged, time period goes down. So I can see the time period going down. If the time period goes down, then what happens to the amplitude is the question. सिचुएशन समझ में आ गई है? इट्स अ हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग ना, और इसके ऊपर एक मास रख दिया, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो 2 पाई अंडर रूट M/K अब हमारा है ही। सो नाउ यू हैव टेकन this variable, you are trying to make a change, and you have to reach to a conclusion how it impacts A, through which matlab, this basically follows x is equal to A sin omega t, right? Because this is SHM, एम्पलीट्यूड तो यही आता है, और काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर उसमें भी आता है। तो आर दे सेइंग दैट द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम which was half k x square, मतलब एम्पलीट्यूड की टर्म्स में a है, k k तो नहीं बदला, टोटल एनर्जी बदली है इन्होंने, इसका मतलब, क्योंकि m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर यही होता है फॉर्मूला एनर्जी का। क्या होता है? m ओमेगा स्क्वायर। हाँ हाँ, कौन सा के का या? हाँ, ये टोटल एनर्जी है ना, अच्छा, टोटल एनर्जी है ना। हाफ हाफ के एम a। ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ही होता है।
हाफ के ए स्क्वायर हो गया ना। हाँ। इसने के से तो छेड़ाखानी करी नहीं है टोटल एनर्जी में। और तो इस काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करें तो हाफ एम वी स्क्वायर होती है और हाफ एम ए ओमेगा होती है, और मिड पॉइंट पे वेलोसिटी इज द हाईएस्ट, वी मैक्स ए ओमेगा होता है। तो इसने ओमेगा बदला है यहां से, एम बदलने से ओमेगा बदल गया, काइनेटिक एनर्जी उतनी रही, तो इसका एम्पलीट्यूड नया आ जाएगा ना। काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स द सेम, ओमेगा चेंजेस, सो ए न्यू भी ए टू भी आ जाएगा इसका। हाँ, दिस इज ओमेगा टू। काइनेटिक एनर्जी, will the energy of the system change? I think the energy of the system does not change. The half m changes, so m1 plus m2 हो गया, omega changes, this increases, this thing decreases, therefore a new amplitude also needs to be found out for the same kinetic energy. I think ke remains the same, so half m1 plus m2 omega 2 हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना, तो ये वी स्क्वायर है, इज इक्वल टू हाफ m1 ओमेगा 1 a1 स्क्वायर। Why will kinetic energy change यार, मतलब क्यों चेंज होगी kinetic energy? That remains the same, but ठीक है। the frequency of oscillation and amplitude undergo some change too। जैसे मैंने ये लिखा है, ये V max है, ये मेरा V max है, V max 1 है, ये मेरा V max। जस्ट थिंक करके देखना जरा कैसे आता है ये। एम्पलीट्यूड नया निकाल लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी सेम रख के डिवाइड, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, मतलब तो a2/a1 लाने की कोशिश करते हैं इधर से, वही आ जाएगा ये a1/a2। a1/a2 यहाँ डाल देंगे और अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे। And I'm just thinking, what are the variables which have changed? Why will kinetic energy change? You have not done external work. You have not pulled the string more. That means there is no external work done. So it retains its energy. But then the variables undergo change because of extra mass. सब चेंज हो जाता है, ओमेगा बदलता है, मास बदलता है, के नहीं बदला और ए बदल जाता है।
लिखा कुछ? Just put the values here. Half m1 is known, 900. Amplitude is a1. 8 a1. Omega is known, under root m by k, 900 by k. ग्राम्स में कर लो क्योंकि वो भी ग्राम में ही है, पंगा हो जाएगा। ये किलोग्राम में लिया, ये ग्राम में ले लिया। कीप इट वन, आइदर कीप इट दिस और दैट। ठीक है, ये a1 है, इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय k। दोनों तरफ से k तो कटेगा। हाफ अंडर रूट के कट जाएगा दोनों साइड से। वो तो सीधा स्टिफ, मतलब देयर इज नो नथिंग। A1 बाई A2 की रेशो आ जाएगी। देखते हैं कितनी आती है, बड़े अजीब अजीब नंबर आ रहे हैं अभी तो। चलो, 900 का 1024 रूट तो 30 है, और 1024 का रूट इज 24। नहीं, नो 30, 24 नहीं है। 32, 32। ये 32 है, ये 300 है। 30 है, ये 30 है, ये 32 है। तो रूट में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली खास। हाँ 32 तो A1 बाई A2 हम्म, सर पे कर्सर हटा दो। 1024 बाय 900 इंटू 32/30 बाय, राइट। तो कटेगा कुछ? ये 216 जार, 215 जार। नहीं 1024 को भी हम A1 बाई A2 को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये किस में 32 ला का रहा है? क्यूब अल्फा इंटू अपॉन, 30। अच्छा हाँ ठीक है, 32 का क्यूब और 31, ठीक है। ओके, सो यू हैव टू राइट फाइनली गेट अल्फा, सो पुट इट इक्वल टू अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 1। ये रुक जा, मैं इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर देता हूँ। तो बड़ा अजीब है यार ये ये, जाएगा उससे क्या टू वैल्यू आती जा रही है? 16 जार 256। हाँ, ये आ रहा है 16, ये 15। अरे क्यूब में आ रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई, अल्फा की वैल्यू निकालनी है भाई। क्या क्वेश्चन बनाया है? 16 का क्यूब तो करना पड़ेगा। 16 का क्यूब 256 इंटू 16 हम्म, फंस गए। 36 33 3 15 मतलब ये 2 रेज़ टू पावर 12 है, ये 2 रेज़ टू पावर उसका 4 है। क्या करेंगे 2 रेज़ टू पावर 12 में तो 2 रेज़ टू पावर 3 होता है।
496, 4096, ठीक है, 4096 दो सौ डिवाइडेड बाय पच्चीस गुणा 15, 225 इंटू 15, 2025, 3025, 3075, नहीं, बहुत ही तीन गंदे हजार नंबर आ तीन रहे हैं। सौ पचहत्तर बड़े अजीब नंबर आ रहे हैं यार ये तो। अपॉन अल्फा परसेंट नहीं माइनस है ये। 1, 4096 अपॉन अल्फा माइनस 4096। अब मुझे शक मैंने पड़ गया क्यूब कि रूट ये सही हम भी ठीक लिए कर हैं। रहे हैं गलत कर रहे हैं। हम सही जा रहे हैं, कोई गलत नहीं सही जा कर रहे रहे। सही जा रहे, हैं, सही जा ओके। रहे। वैल्यूज बड़ी बहुत ही। हाँ कोई बात नहीं, क्या फिजिक्स है ये तो। उसमें तो लग नहीं रहा कुछ। फिजिक्स कहीं भी कभी भी धोखा देती है। अल्फा ठीक है, सब्ट्रैक्ट। माइनस, अच्छा सब प्रैक्टिकल लेते हैं। ये जाएगा दो, नहीं वन, टू, सेवन, 721 अल्फा इज इक्वल्स टू 409, एक 4096, कट जाता कितना बढ़िया होता यार। 721। और अच्छा एक मिनट, 7 से जा सकता है, 7 से सेवन से जा रहा है, 7 5 जार 4096 मतलब 35, 35, 59, 856। 8 जार। नहीं, वियर्ड वैल्यू। कॉन्सेप्चुअल एरर तो नहीं हो गया, हमने सोच सही रखी है अपनी। Why will the energy change? Keeping the law of conservation of energy, we just manipulate all the variables and get even by it. ये अप्रोच रखी है हमने। बड़ा हॉरेंडस वैल्यू है। बताओ। और हम्म 5 पॉइंट समथिंग जाएगी। कोई गलती है इसके अंदर, मतलब सोच में। एक एसएचएम है, उसके ऊपर रख हमारी दिया सोच मास। तो बड़ी साफ थी। एम बाय के में m1 + m2 कर दिया, के नहीं चेंज करा। टाइम पीरियड पे इम्पैक्ट आया। फिर हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखा, हाफ एम ए ओमेगा स्क्वायर। हमने ए ओमेगा स्क्वायर लगाया। ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर होता है ना फॉर्मूला तो। हाँ, हेलो। हाँ, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। हाँ, तो ये के था। या तो हमने लगाया हाफ के, सॉरी हाफ m1 ओमेगा स्क्वायर यूज करा, हमने करा। करें। एक ओमेगा मिनट, हमने स्क्वायर यूज करा। आर यू इन योर कैलकुलेशन कहीं? चेक योर कैलकुलेशन स्क्वायर। व्हेन यू। भाई ये एम ओमेगा स्क्वायर है ना ये। नहीं वैसे एक चीज, एक और चीज भी है, हमने A1 स्क्वायर नहीं लिखा। हाँ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आर वी श्योर हमने वो करा है? ए स्क्वायर, हाँ, तो ये स्क्वायर है इसका ये। भी अंडर रूट हो जाएगा। हाँ, हाँ, तो ये 3/2 है ना। सो हाँ 3/2 है। क्या लॉग लेना पड़ेगा? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। 2 रेज टू पावर इसको लिख सकते हैं ना, 2 रेज टू पावर 5। नहीं, इसको लिख सकते हैं। नहीं एक मिनट, एक मिनट, ये 2 रेस्ट पावर आप कह रहे हो? 5 होता है। हाँ 2 रेस्ट पावर 15। कुछ तो नीचे से भी काटो ना, पहले 16 बाय वो लिख लो इसको, 16 बाय, तो टू रेस्ट रेज टू पावर पावर फोर हो जाएगा। 15। 15 कहाँ से आ गया ऊपर?
अरे वो 2 रेस्ट 32 रेस्ट पावर 3 ना। नहीं नहीं, इसको काट देते हैं ना इन दोनों को, ये टू चलो। सिक्सटीन आर 215 आर। हाँ हाँ, वो तो 16/15 क्यूब। हाँ, 3/2। हाँ, 3/2 है। 3/2। हाँ भाई, दिस इज व्हाट, 16/15, 3/2 ही तो हुआ। हम्म। अगर मैं बात करूँ 16/15, अब इसकी वैल्यू कौन निकालेगा? वन पॉइंट um वन आएगी, फिर वन टू पॉइंट वन रेस्ट टू इंटू पावर अंडर रूट ऑफ 1.1, सर कुल रहे, 1 मिनट, 16 का कुछ कर सकते हैं। 4 स्क्वायर। हाँ, 2 रेस्ट पावर, अरे इसको 2 रेस्ट पावर में लिख लो ना, उसमें भी लिख क्यों? 3/2 से कट जाएगा, फोर लो। स्क्वायर हाँ, इंटू 3/2 हाँ, कटा, ये आ जाए कट टू गया। रेस्ट पावर सिक्स आ जाएगा। हाँ ठीक है, 2 raised to 6 क्या 64 है। हाँ। और ये 15 रेस्ट 64, पावर 3/2 है, यानी कि 2 इंटू, अच्छा। ठीक है, 15 × √15, भाई 64/15 इंटू √15। अल्फा/अल्फा-1। हम्म, क्या यार, क्या वैल्यूज आ रही हैं। अब मैं आंसर चेक कर रहा हूँ इसका। इससे ज्यादा क्या वैल्यू निकालेगा। इनका एग्जैक्ट आ रहा है 16। इन्होंने कुछ अप्रोक्सीमेशन का खेल खेला होगा। ना, इनकी एक्सप्लेनेशन में A² ही गायब है। MA ओमेगा स्क्वायर, नहीं MA ओमेगा, मुझे मालूम नहीं क्या रूल है यार ये। MA ओमेगा, हाँ, काइनेटिक एनर्जी, इसका चेक करना कहीं पे आंसर आ रहा है, देखना कहीं पे। क्या क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट लगाया है, चेक करते हैं जरा कहीं पे। आर्थक्स ई कनेक्ट सेट, a mass of 0.9 kg. कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाया है इसने। नेट फोर्स इज 0, देयरफॉर बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओ, सो does he mean the energy remains, energy changes? That means it's a inelastic collision when you keep a block on a block. So he has applied inelastic. सर, हाँ, 1 मिनट। block on a block हमने is a एक चीज गलत करी है। क्या? सर एक चीज बताओ, के तो दोनों में सेम ही रहेगा ना। हाँ, सेम लिया है, काट दिया था। सेम रहेगा तो A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर जो होगा हमारा, वो हम्म, 1024/900 होगा ना। मतलब भाई, के तो काट दिया था, ये रहा कट गया। ये ½ m ओमेगा स्क्वायर दोनों साइड से कट जाएगा तो A1/A2 रहेगा, विच इज 1024/900। नहीं नहीं, एक सेकेंड, एम क्यों कट जाएगा दोनों साइड से, एम अलग है। अरे अरे सर, के तो दोनों में सेम ही रहेगा ना, के की हाँ वैल्यू, सेम है। स्प्रिंग कांस्टेंट तो सेम ही, स्प्रिंग तो एक ही है ना। सो यू हैव टू जस्ट राइट हाफ, एक मिनट, के हाफ के A1 स्क्वायर, के, ये एनर्जी ए होती वन है, स्क्वायर ये एनर्जी ये होती है। हाँ, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ½ m ओमेगा स्क्वायर, वही तो नहीं नहीं, फिर यही तो तो होता है ये। नहीं नहीं, अगर अगर के ही नहीं बदला दोनों साइड, तो ए क्यों बदलेगा दोनों साइड? सर एक सर, आप मुझे एक चीज बताओ, एक जो स्प्रिंग होती है हाँ उसका केस सेम ही रहेगा ना, अगर सेम स्प्रिंग यूज की गई हो। हाँ हाँ। वो बदलेगा थोड़ी ना वो।
नहीं, उसकी लेंथ नहीं बदली हमने, कुछ नहीं करा, काटा नहीं, पीटा नहीं, उसे कुछ नहीं करा। हाँ तो फिर के तो सेम ही रहेगा, तो उसको चेंज करने की जरूरत है, तो दो साइड से काट दो। तो एनर्जी चेंज नहीं हुई ना, मास बदलने से क्या हुआ फिर? ए पे क्या तो इम्पैक्ट आया वो दिखाना है हमें तो। हाँ, A1/A2 निकालना है ना। A1/A2 निकालना है। मतलब ये वो, मतलब विच इक्वेशन, विच लॉ आर यू मैं यूजिंग इज आपको नॉट बता रहा क्लियर। हूँ। हाँ, जो लॉ ऑफ कॉन्जर्व। काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व्ड रहती है, वो चेंज तो हुई नहीं। हाँ, मैंने तो वही यूज करा है, लेकिन इसने तो। तो हाँ, हम जो है हाफ। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर हाँ, A1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ हाफ एम एम वन प्लस एम टू एम एम वन वन प्लस प्लस एम एम टू टू हाँ जी, M1+M2। और हमें मालूम है, बिकॉज द मास हैज अंडरगॉन अ चेंज, ओमेगा हैज अंडरगॉन अ चेंज। ये ओमेगा 2 बन गया हमारा। ओमेगा 2 बन गया, ठीक है। सर इसको हम, इन दोनों को हम के लिख सकते हैं, और इसको, तो इसको हम तो ए हाफ वन के बाई ए टू इस, इज इक्वल टू वन हो गया, बस खत्म। A1/A2 इज इक्वल टू वन, व्हाट आर यू सेइंग? अरे कट, A1 इज इक्वल टू A2 आ जाएगा इसमें तो हमारा। हाँ, ये लॉजिक गलत था काइनेटिक एनर्जी का। बस एक, इससे तो कंजर्व रही एनर्जी। इफ एनर्जी इज कंजर्व्ड, देन A1 एंड A2 रिमेन्स सेम। इसका एम्पलीट्यूड बदल गया, इसका मतलब एनर्जी डज नॉट रिमेन कंजर्व्ड विद दिस लॉजिक। क्वेश्चन के अंदर इंप्लाइड है कि एनर्जी कंजर्व नहीं हुई है। अगर एनर्जी कंजर्व नहीं हुई है, देन इट्स एन इनइलास्टिक कोलिजन, एंड देयरफॉर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हमने तो वैसे सर क- काइनेटिक ला- एनर्जी को हम P²/2m भी तो लिख सकते हैं ना। ओहो, पहले पी तो बाद में आएगा, पहले मतलब काइनेटिक एनर्जी को कैसे ही लिख लो। बट मोमेंटम कंजर्वेशन है, और काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, इज व्हाट इट मींस एक्चुअली, कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, क्योंकि हमारा A1 इज इक्वल टू A2 रहा ही नहीं। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं नहीं रहेगी, रहेगी। ठीक है, नहीं रहेगी, कोई बात नहीं। तो इसका मतलब यू विल हैव टू अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नथिंग, मतलब वो मोमेंट। मोमेंटम, नॉट एनर्जी। ओके। तो ये क्वेश्चन मैकेनिक्स में ले गया हमको कहीं पे, घुमा घुमा के। M1U1 + M2U2 is equals to, ये बड़ी मैथ्स के, वो है बड़े मैथ्स के पिट्ठू हैं बड़े, ये बहुत बड़े। क्या? मतलब ये मैथ्स में। ठीक है, सब मैथ्स ही पूछ लो। अरे सर ये कैसा क्वेश्चन है कि बड़ा वो, ये रूट ट्रिको टू का क्वेश्चन टाइम्स है। इसको डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय √2 कर लो, और साइन ऑफ π/4 प्लस 2π/t बना लो। साइन है cos b साइन है। ये वो वाला क्वेश्चन है, ये जस्ट कन्वर्टेड इनटू अ सिंगल साइन वैल्यू, सो दैट ये जो फेज है एक कॉमन हो जाए यहाँ पे। से खोल दिया, हाँ डिवाइड एंड ठीक है। मल्टीप्लाई बाय √2 कर लो, तो यहाँ पे जो बच हम्म, जाएगा वो एम्पलीट्यूड आ जाएगा। छुपा हुआ क्वेश्चन हाँ है ये ठीक। ट्रिको का क्वेश्चन, उसका तो है ही नहीं है।
वैसे चैप्टर ना एक्चुअली होना भी ट्रिगो में ही चाहिए। पता नहीं कहाँ होना चाहिए ट्रिगो मैथ्स। नहीं मैथ्स में रख कभी लो कुछ ना, तो पूछते हैं फिजिक्स कभी में कुछ क्यों पूछते हैं। परेशान कर रहे हो चैप्टर देके। हम्म। फिजिक्स में लोड बढ़ रहा है। ये चैप्टर क्योंकि वो करके बताओ। मास ऑन मास जो हमने रखा था ना, बेसिकली हम्म। दैट वाज स्टिकिंग ऑफ टू मासेस। हम्म। तो रिमेंबर स्टिकिंग ऑफ टू मासेस जनरली इनइलास्टिक वाला होता हम्म। है, इनइलास्टिक कोलिजन। बड़े दिमाग में आया ही नहीं कि कोलिजन है ये, मतलब मास ऑन अ मास केप्ट। वो कोलिजन कैसे एंड दे रहा है वो? व्हाट? मोमेंटम में तो जब एक मास दूसरे से चिपक जाता है तो बोलते हैं ना हो सम जाता है, पार्ट ऑफ इनलास्टिक एनर्जी कोलिजन इज में लॉस्ट। चिपकता है ना हाँ वो। चिपकता है, तो वो उस तरह से सोचा नहीं, बस वो एनर्जी में फंस गए यार। A1 = A2 आ गया। वैसे बता, इस क्वेश्चन को और एक तरीके से भी कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये ट्रिगो का पहले इसमें से फेज बराबर कर दो। नहीं नहीं, फेज ये बराबर होगा देन ऊपर यू वाला कैन ऊपर कंपेयर। वाला जो आपने किया था काइनेटिक। और मोमेंटम है और क्या है। हाँ नहीं, हम एक क्या कर सकते हैं ना, मोमेंटम तो सेम ही रहता है आप कह रहे हो। हम्म। तो हाँ। जो हमने वो निकाली थी, क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी हाफ के A1 स्क्वायर, हम्म। उसको हम P² अपॉन 2m1 लिख सकते थे। ओ ठीक है। और फिर A1 अपॉन A2 जो आता वो 32 अपॉन वो आ जाता, हम्म। 30। अरे हमें लेना था P1 = P2। तभी उनकी एग्जैक्ट वो आ रही थी, हम्म। 16। यस। हाँ तो इसमें वो क्या कहते हैं। नहीं ये मिनट इसको
एक मिनट, इसमें अब क्या मतलब, जो ये है x2। 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2, 5 × √2 अच्छा, मतलब इंटू इंटू 1/। sin 2π/t प्लस 1/√2 cos अच्छा टू अच्छा, पाई बाई टी, और एक √2 ठीक। से मल्टीप्लाई भी कर लिया, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय √2, सो दिस इज 10 एंड दिस इज साइन ऑफ 2π/t प्लस 5/4। तो दोनों का फेस तो सेम कर दिया मैंने, हम्म, एम्पलीट्यूड डबल हो गया, इसका मतलब इसका अच्छा। ट्रिको से कर लिया ना। हाँ, दिख नहीं रहा था ना कि ये SHM है, पीरियोडिक हम्म, फंक्शन लग रहा था, उसे एक SHM बना दिया, a sin ωt प्लस 5/4। दो SHM के एम्पलीट्यूड्स को कंपेयर कर लिया, 2 टाइम्स। राइट। ये आ गया समझ में? आगे। ओके। अरे पहले रजिस्टर जरूर करवाएंगे। हम्म।
कभी तो फॉर्मूला फिटिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं, ऐसे लगता है जैसे कि। और फॉर्मूला फिटिंग नहीं करनी है उसको, दिमाग का दही। लास्ट क्वेश्चन है तो जेई का, बट वेरी स्कूल लेवलिश। काय? ये था कि एक बार प्रैक्टिस भी हो जाए थोड़ी, गेट मोर एक्सपोजर टू न्यूमेरिकल्स एंड देन वी call it off. Now you have good exposure. नाइन्टी 99.4 सेंटीमीटर। हम्म ओमेगा यूज करके 2 पाई L/G, राइट? अरे सर, वैसे भी सेकंड पेंडुलम की लेंथ वैसे भी 9.99.4 ही होती है। क्या करा, कहाँ पे है सॉल्व? वैसे भी सर, जो सेकंड पेंडुलम होता है ना, हम्म उसका सेकंड टाइम पीरियड पेंडुलम वैसे। कहाँ लिखा है? ये सेकंड हाँ। पेंडुलम है अरे, सिम भाई। टाइम। हाँ, ओमेगा दिया हुआ है इज इक्वल टू पाई, आई सो है। 2 पाई/T इज इक्वल टू पाई, सो इसका तो हाफ है।
सेकंड पेंडुलम वर्ड ही नहीं यूज करा कहीं पे, अपने मन से बना लिया। और सेकंड पेंडुलम अरे जबरदस्ती। 2 पाई बाई टी हाफ। हाँ हाफ कैसे आ जाएगा? टी 2 सेकेंड है। हाँ, whatever जो भी आ रहा है, टू तो आ रहा है हाफ ना। कैसे? सेकंड पेंडुलम भी वही होता है, 2 सेकेंड का टाइम पीरियड होता है उसका। सेकंड नाम सेकंड होता है। हाँ, सेकंड सेकंड पेंडुलम होता है पेंडुलम उसका, लेंथ सेकंड ही उसकी होता है 19। उसका, टू नहीं होता उसका। सेकेंड ही होता है वो, नाम सेकंड पेंडुलम होता है। हम्म, ठीक है, आ जाएगा 49। दिस इज 49 इंटू 20। हम्म। तो जो सेकंड पेंडुलम होता है ना, वे उसको सेकंड ही क्यों बोलते हैं? तो सेकंड इस वजह से बस नाम है सेकंड, क्योंकि इसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड होता है। फिर सेकंड, क्या? सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 होगा। हाँ 2 है। हम्म। सेकंड पेंडुलम 1 सेकेंड ऑफ फॉर अ स्विंग इन वन डायरेक्शन। हाँ। ठीक है। ठीक है जी, नाउ यू आर फ्री टू प्रैक्टिस एंड डू योर ओन स्टफ। ठीक। एक just one diagram which I want to tell you, and is a useful diagram to understand. We have seen this, but अब थोड़ा सा अलग तरीके से। ये जो पॉइंट्स होते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स, SHM के ये वाले, राइट? These points. So this is its equilibrium point. This one. ये जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं इनको टर्निंग पॉइंट्स बोलते हैं। Okay? It turns back ठीक है। towards the mean position. हम्म। ये ग्राफ तो हम एनर्जी के पढ़ चुके हैं ना। हम्म। टोटल एनर्जी, potential energy, kinetic energy. These are turning points. Okay. The force is equal to minus du by dx. The equilibrium position is shown as a black dot and is a point where the force is equal to 0. The force is positive when x is less than 0, negative when x is greater than 0, and 0 when, तो ये जो फोर्स की वैल्यू दिख रही है, ये वाली दिख रही है, ये यहाँ टर्निंग पॉइंट्स पे, हम्म।
the value of the force is not zero here. Okay. When x is less than 0 and x greater than 0, that means on both the sides there is a restoration force. And the highest restoration force is available here, which is known as a turning point. So turning point is that point where the restoration force kx a becomes equal to a. कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है टर्निंग पॉइंट, वहां पे x इक्वल टू a लेना होता है. Okay. Got it? That is a use of this word turning point in SHM. ठीक है जी, we are I think good to go. Let's meet tomorrow and start waves. करते रहना प्रैक्टिस अपने आप. हाँ. See you then.